भारत के भविष्य पर संकट, प्रदूषित हवा से जूझती युवाओं की सांसें। राजधानी दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में रेस्पिकॉन 2025, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी और स्लीप डिसऑर्डर्स पर भारत का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 1200 से अधिक प्रतिनिधि, पीजी छात्र, वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें क्लीन एयर प्रिस्क्राइबिंग, क्रॉनिक खांसी की शुरुआती जांच के लिए स्पायरोमेट्री, टीबी के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग, वयस्कों के लिए टीकाकरण और लो डोज सिटी व ईबीयूएस आधारित कैंसर डायग्नोसिस जैसे समाधानों पर चर्चा हुई। रेस्पिकॉन प्रोग्राम के डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर राकेश के चावला ने कहा, यदि हम फाइन पार्टिकुलेट प्रदूषण को आधा कर दें और सीओपीडी, अस्थमा और टीबी के लिए गाइडलाइन आधारित इलाज अपनाएं, तो हर साल लाखों लोग अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं और अपने लोगों के जीवन में स्वस्थ साल जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ अस्पतालों या मरीजों की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की ताकत और जीवटता को बचाने का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। But when it came to exacerbations, it significantly brought down exacerbation in patients who are at risk for future exacerbations. With no serious adverse effects, ongoing increase in mock trials in dysphonia, which is there with steroids and LAMA. So what is the current role of LAMA? And GINA advocates in step 5. So adding LAMA or ICS, LAMA at step 3 is likely to translate into better control of asthma, improved quality of life, hospitalizations, hopefully a slow decline in lung function, and possibly reduce morbidity and mortality. I'm sure GINA will follow, but they are very slow on this. They are very cautious people. So now we come to concept of treatable traits. Treatable traits are the decision-making strategy for asthma that identifies a trait based on phenotype or phenotype. We got it from Dr. Chawla, from Dr. Radhadhar. So asthma is a heterogeneous disorder, several phenotypes, wide range of symptoms and underlying factors, variable response to therapy. Now this principle takes in looks at the patient as a whole. हम सबको पता है, एक टारगेट फिक्स किया गया है, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. इट इज वेरी सेंसिटिव टू द हार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट एट द सेम टाइम हम सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है. So public participation in this program to help government to participate in the diagnosis that patient has got a symptom, he goes to the government program, gets it ruled out, basic X-ray test, sputum test कि उसको tuberculosis नहीं है. It will be amazed to listen कि government is not only providing the medicines at hope, even observers are behind the patients, that they observe, confirm that you are taking the medicine properly, getting the test properly, and it is the level of, say, the state level, then district level, then small districts, like in Delhi you say there are 54 districts. Out of those 56 different areas like Rohini, Paschim Vihar, they are coming down to those district centers, then the DTOs, and all government hospitals have got this facility, and government is doing its best. But I know, looks difficult, but not impossible. What challenges we are facing? See, we are facing the challenges because unawareness. People are not awareness, ignorance. Then trying to postpone कि खांसी है, चलो ठीक हो जाएगी, दादी माँ का नुस्खा ले लिया, तुलसी मुलेठी ले ली, लेकिन उसको पोस्टपोन करते रहे, ठीक नहीं हुई, तब डॉक्टर के पास गए, फिर ठीक नहीं हुई, तो फिर आपने एक्सरे कराया. आज भी वी आर नॉट दैट मच अवेयर कि स्ट्रेट आपको खांसी हुई, आपने एक्सरे चेस्ट करा लिया, क्योंकि घर में फीवर हो गया, आपने पैरासीटामोल की गोली ले ली. गोइंग टू द डॉक्टर, इंक्रीजिंग द अवेयरनेस, विच गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी एफिशिएंटली. रखी गई है जी. और जिस तरह से समाज में संक्रमित फैलेगी बीमारी को लेकर क्या कहेंगे? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी छाती का रोग विशेषज्ञ हैं हम लोग इसी विशेष में सारी बातें कर रहे हैं. आज जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो इसीलिए रखी है सो दैट हम लोग डिस्कस कर पाए बेसिक बीमारियां जो
डिफरेंट बीमारियों से हम लोग इस टाइम पे ग्रसित हैं, हमारी पॉपुलेशन ग्रसित है, जो हमारा यूथ ग्रसित है इस टाइम पे, यूथ जो फेस कर रहा है, जो एक टाइम पे 60 साल के ऊपर लोगों को बीमारियां होती थी, आजकल 20-20 25-25 साल के बच्चे सफर कर रहे हैं। जो सीओपीडी जिसको हम लोग कहते हैं, फुफ्फुसिया लंग रोग कहते हैं जिसको हम लोग, जो कि 60-70 साल के पेशेंट्स आते थे बीड़ी पी के, स्मोकिंग की वजह से, आजकल 22-22 23-23 साल के लड़के, 25-30 साल के लड़के जो वेपिंग के नाम पे कहते हैं कि हम लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, हुक्का कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में हमारे को देखने को मिल रही है वो वाली बीमारियां जो कि 60 साल के पेशेंट्स में देखने को मिलती थी। तो आप ये गौर करोगे 60 साल की बीमारी अगर 25 साल में आ गई तो हमारा यूथ कितना सफर कर रहा है। यूथ इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड डोसिस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हम लोग पेशेंट्स को, लोगों को अवेयर कर सकें कि आप टीबी का डायग्नोसिस जल्द से जल्द बनवाएं, जल्द से जल्द डॉक्टर से आप परामर्श लें। खांसी हुई 2 हफ्ते की तो आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। ये बेसिक मैसेज था जो बहुत पहले से हम लोग देते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के भी उसके अंदर यही हम लोग मैसेज देते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है डॉक्टर को दिखाओ। पेशेंट जाता है पहले झोला छाप के पास, पेशेंट जाता है पहले लोअर डॉक्टर के पास, फिर वो जाता है सिंपल डॉक्टर के पास, फिर वो जाता है वैद्य के पास, फिर वो जाता है बगल वाले डॉक्टर के पास, फिर वो हमारे पास लैंड करता है जबकि उसकी बीमारी फुल्ली ब्लोन मतलब पूरी बढ़ चुकी होती है। सो बहुत लेट डायग्नोसिस बनता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, पेशेंट का आधा लंग खत्म हो चुका होता है। ऐसे केसेस में हमारे को देखने को मिलते हैं पेशेंट्स। तो वी वांट कि पेशेंट्स जल्द से जल्द हमारे पास परामर्श के लिए आए, हम लोग उनका एक्सरे कराएं, अगर बीमारी है तो उसको डायग्नोसिस दें, उसका ट्रीट करें। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो टीबी को लेकर एक भ्रम भी फैला हुआ है कि जो स्प्रेडिंग बीमारी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भ्रम नहीं है, 200% सच बात है। स्प्रेडिंग बीमारी है। हिंदुस्तानी को खांसी करना नहीं आता। हम लोग कहते हैं कि इसको बाहर में जाके खांसी करो, खुले मुंह खांसी मत करो, रुमाल में खांसी करो, मगर आदमी क्या करेगा, वैसे रुमाल रखेगा, खांसी करनी तो मुंह हटा के लोगों के मुंह पे खांसेगा। बस के अंदर लोग बगल के अंदर बगल घुसे होते हैं तो वहां पे कोई जगह ही नहीं होती सांस लेने की। जब वो खांसी कर रहा होता है तो अगले बंदे के मुंह पे खांसी करता है। इसी तरीके से टीबी रोग फैलता है। अगले बंदे को तो पता ही नहीं होता अगले को क्या मिल गया, राइट। तो वो खांसी की वजह से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस, तो वो एयर के थ्रू, एयर के द्वारा फैलता है। 2-3 प्रकार के टीबी होते हैं जिसके अंदर वो नहीं भी फैलता, जो कि टीबी का पानी बन जाना, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाना, ये सब चीजें अलग है। जो फैलने वाला टीबी है, हमारे को अलार्मिंग सिचुएशन वो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एमडीआर टीबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रेजिस्टेंट टीबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और हमारे को उस पे ध्यान देने की बहुत जल्दी जरूरत है, सो दैट हम लोग उसको स्लो डाउन कर पाए। उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। प्रिकॉशन को लेकर क्या सलाह देंगे? प्रिकॉशन को लेकर क्या सलाह? प्रिकॉशन को लेके ये सलाह देखें, अगर किसी को खांसी है, बलगम है, तो मास्क पहने, मास्क का इस्तेमाल करे, लोगों से दूर रहे, लोगों के मुंह पे ना खांसे, अपने घर के अंदर भी बच्चों से दूरी बना के रखे। और अगर किसी को टीबी है, डायग्नोसिस हो चुका है उसको, तो अपने बलगम को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करे। इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस है बनी हुई। टीबी वाले पेशेंट को समझाया जाता है उसको कैसे बलगम को डिस्पोज ऑफ करना है, और वैसे वो करे प्रैक्टिस। वो ऐसे खुले मुंह खांसी ना करे, जो कि सोशली भी अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है, और अपने उसके घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। उसको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी बीमारी के लिए अवेयर हो। आप अपने आप को ये बोल के कि मैं ठीक हूं करके आप अपनी बीमारी को डिले मत करें। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। सांस की अगर परेशानी है तो, और वेपिंग, हुक्का, ये कूल दिखने के लिए फायदा नहीं है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंड ऑफ द डे खराब करेंगे। ये स्मोकिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये स्मोकिंग को छोड़ता नहीं है। ये भी उतना ही डैमेज करेगा फेफड़े को जितना स्मोकिंग करती है। स्मोकिंग के अंदर जो 4000 कार्सिनोजेंस हैं जो फेफड़े के अंदर जाते हैं और फेफड़े को खराब करते हैं, इस वेप के अंदर भी उतने ही कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस डिफरेंट हैं, दूसरे मटेरियल से बने हैं, प्लास्टिक्स हैं इसके अंदर, बिकॉज ये सब चीजें केमिकल से बनाई जा रही है। इसके अंदर वो नशा दिया जा रहा है निकोटीन का, जो कि वो पेशेंट को अच्छा लगता है लेने में, बट उसके साथ वो अंदर क्या इनहेल कर रहा है, क्या केमिकल्स ले रहा है, उसको भी नहीं पता, और ये इस टाइम पे हमें भी नहीं पता। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।